جو مرد ہے اس کی خاتون یہاں کھڑی ہوئی. دوسرا ایک ایسا کارپوریٹر جو پہلے چن کے آیا، وہ اگر علاقے میں کہیں آپس میں گھریلو معاملے میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں تو دونوں کو پولیس اسٹیشن میں لے کے جاتا، لوگوں کو کمپرومائز ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ان سے پیسے دونوں سے کھا جاتا ہے. ایسا توڑی باز امیدوار اس کے ساتھ پاور ہاؤس میں ٹپ دیتا ہے کہ بھلا جگہ جاؤ، میٹر پر ریٹ ڈالو، یہاں آخری ہے، یہاں میٹر بنا ہوا ہے. اور جب پاور ہاؤس والے آتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر اس غریب کے میٹر کی توڑی کرتا ہے. اور ایک ایسے امیدوار جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ منشیات نشے کا دھندا کرتے. لیکن میں تو یہ سب نہیں جانتی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ بھائی پچھلے دنوں میں نے سنا تھا دوڑنے بھاگنے میں ایک شخص کی جان چلی گئی، اس کے بعد پھر کسی ایک کی جان گئی. یہ یاد رکھو یہ علاقہ جو ہے یہ مالیگاؤں شہر کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بہت سوچ سمجھ کے سمجھدار لوگ رہتے، بھلے ہی غریب ہیں، ہماری حالت بہت اچھی نہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن کوئی غیر ضروری کام حرام کمائی نہیں کھاتے. ایسے علاقے میں اگر کوئی نشے کا دھندا کرتا ہے تو وہ سمجھ لو تمہاری نسلوں کو خراب کرنے والا ہے. اور اگر ایسے لوگ جو تمہاری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، میں ایک بات بتا دیتی ہوں کہ نشے کا دھندا کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو دوڑا کے مارو. جو خراب نشے کرواتے ہیں، جو ایسے نشے کرواتے ہیں کہ وہ نشہ کرنے کے بعد نشے والا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں کون ہے اور میری بیوی کون ہے، یہ فرق بھول جاتا ہے. وہ یہ اپنے معصوم بچوں کو ظلم کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ مر جاتا ہے، جوان اس کی بیوی بیوہ بنی رہتی اور وہ معصوم بچے پھر غیر قانونی کام میں چلے جاتے. تو خدا کے واسطے ایسے لوگ جو خود اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکتے، جن کے کردار دنیا بھر کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی پوسٹ مل گئی تو تمہاری بستیوں کا وہ تمہارے بچوں کے مستقبل کو خراب کر دیں گے. اور مجھے یقین ہے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں پہلے بیٹھی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کون اچھے ہیں، کون لوگ کام کر سکتے ہیں. دیکھو ہم چاروں بھی انسان ہیں. میں شان نہال احمد، میرے ساتھ عثمان غنی چیک کی والدہ خالدہ بانو نثار احمد، میرے بھائی جاوید انیس احمد اور صغیر الدین صاحب. ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، لیکن خدا کے واسطے ہم کو معاف کر دو. لیکن ایسے غیر قانونی کام کرنے والوں کے پاس اپنا مستقبل کبھی گروی مت رکھنا، یہ میں آپ کو درخواست کرتی ہوں. جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ میں آنگن واڑی کی یونین چلاتی ہوں، ہاں مالیگاؤں شہر میں آنگن واڑی لانے والے ساتھی نہال احمد 1987 میں ساتھی نہال احمد صاحب نے مالیگاؤں شہر میں آنگن واڑی لائی. اس کے بعد میری والدہ ساجدہ نہال احمد آنگن واڑی کے کام کاج سنبھالتی تھی اور ان کی عمر بڑی ہونے کے بعد وہ ضعیف ہو گئی. اس کے بعد سے میں آنگن واڑی کی یونین چلاتی ہوں. انشاءاللہ اس تعلق سے مجھے پہلے بھی ناصر بھائی نے کہا ہے آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ہر 2 غریب میں ایک آنگن واڑی بنانے کا کام کریں گے. یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں. میری مائیں بہنیں، یہ علاقہ مزدوروں کا علاقہ ہے. بہت سے لوگ بچت گھر بنائے ہیں، بہت سے خواتین بچت گھر بنائی اور بہت سی خواتین نہیں بنا پائی، اس لیے کہ وہ دارالعلوم خالی کی جو لسٹ ہے، جیو لسٹ میں نام ہونا چاہیے بچت گھر بنانے کے لیے، وہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آخری بار سروے کرانے والے 2003 میں ساتھی نہال احمد تھے، جو صرف 14 عورتوں کی لسٹ تھی. نیا سروے کروا کے نہال صاحب نے 10,000 عورتوں کی لسٹ بنوائی تھی. آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہم پھر سے نیا سروے کروائیں گے اور اس سروے سے تمہارا 2 فائدہ ہوگا. میں بتا دیتی ہوں. ایک
गढ़ है, उनको लोग आज तक बचत गढ़ की अहमियत नहीं समझते। वो सिर्फ ये समझते हैं कि कारपोरेशन से कर्जा ले लो, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात है। तुम कारपोरेशन में ठेकेदारी कर सकते हो कचरे की, तुम कारपोरेशन के राशन दुकान भी ले सकते हो। तुम लोग, मैं बताती हूँ आपको कि इचलकरंजी में बचत गढ़ वाली औरतें बड़े बड़े पावर लूम चला रही है गवर्नमेंट की सब्सिडी से, लेकिन आप लोगों को मालूमात नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी तक तुमको ऐसे नुमाइंदे समझाने वाले नहीं मिले। तो मैं खवातीन से भी वादा करती हूँ। और एक और चीज, सब यही समझते हैं कि बचत गढ़ सिर्फ औरतें ही बना सकती है। आपके इल्म में ये नहीं है कि बचत गढ़ मर्द भी बना सकते, ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि कैसे नहीं समझता, लेकिन खैर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपकी दुआएं हमारे साथ रही, तो हम बचत गढ़ के नए सर्वे करके मर्द और खवातीन की जो बचत गढ़ की स्कीम है उसको अच्छी तरह आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा ये, मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वो इलाके में 60-12 का उतारे के तकलीफ है कुछ मोहल्लों में। आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर में एक वाहिद लीडर साथी निहाल अहमद थे, जिन्होंने बस्तियां बसाई, और न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि लोगों को अपने घर का 7-12 का मालिक बनवाया। चाहे आप बादशाह खान नगर देख लो, चाहे आप सर्वे नंबर 57 देख लो, चाहे आप निहाल नगर देख लो, चाहे आप गुलशेर नगर देख लो, चाहे आप आजाद नगर देख लो, चाहे आप शाहबाद नगर देख लो, यहाँ तक के साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ 156 जगह पट्टी मालेगांव शहर में बनाई और उसको उस बस्तियों के मालिक बनवाया 7-12 के अटारे के साथ। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ दिया और हमारे लोग सेकुलर फ्रेंड जो शेख आसिफ साहब की इस्लाम पार्टी और हमारी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर मालेगांव शहर में हम इख्तियार में आए और इंशाअल्लाह जो शहर के हालात है हम जरूर इख्तियार में आएंगे आपकी दुआओं से, तो हम 8-12 के उतारे वालों को 7-12 का मालिक बनाएंगे। हम ये वादा करते हैं, क्योंकि फिरका परस्तर की नजर जिस तरह जन्म दाखिले के मामले में है, उसी तरह लैंड जिहाद का मामला सबसे जोरों में है। आप ये जानते होंगे कि यूपी में लोगों के घरों की बांधकाम परवानगी नहीं होती तो पूरी बस्तियां बीजेपी वाले तोड़ देते, चाहे वो गरीब की बस्ती हो या अमीर की बिल्डिंग हो, वो सिर्फ मुसलमानों के घरों पर हमला करते और बिना नोटिस देंगे तोड़ देते हैं। इसलिए नोटिस नहीं देते कि नोटिस अगर देंगे तो कोर्ट में जाके उससे ले आए। तो ये काम वो लोग करते हैं, तो हम आपको वादा करते हैं कि जो लोग 7-12 के उतारे से महरूम है उनके घरों के साथ साथ हमारी मस्जिद भी उस जगह पर बनी है, उसकी उनसे हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप तमाम की औरतों पर है। तुम्हारे घरों के साथ साथ मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप तमाम लोगों की औरतों पर है। अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम 7-12 का मालिक बना के आपको देंगे, ये चारों की तरफ से मैं आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से और कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, उसके बीच में असेंबली का इलेक्शन हुआ, तब से एक बीजेपी ने एक नारा बनाया है कि मालेगांव से हमको बदला लेना है। मालेगांव से वो बदला लेना चाहते हैं। जमीन दाखिले का मामला आया, आज 3400 लोग जमीन दाखिले में फंसे हुए, 3400 लोगों में से 2000 औरतें हैं, 1044 लोगों पर केस हो गया है, जिसमें से 700 औरतें हैं। आप ये समझ लो कि अब SIR आ रहा है। जब जन्म दाखिले का मामला आया, हम सब इंतजार कर रहे थे कि शहर का MLA जो सिर्फ नारे लगाते हैं कलमे के, लेकिन कलमे वालों की हिफाजत के लिए कभी खड़े नहीं हुए। तो हम ये इंतजार कर रहे थे कि ये कब अपनी जुम्मों की लाज रखते हैं, लेकिन जन्म दाखिले में जो फंसे हुए लोग थे उनकी उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम
यही खत्म होने वाला नहीं। अभी भी बीजेपी की गंदी नजर मालेगांव शहर की आवाम पर लगी है, खासतौर पे मुसलमान आवाम पर लगी हुई है, और वो SIR का नाटक जब यहाँ लाएंगे तो हमको परेशान करेंगे। एक बात समझ लो आप, SIR क्या है? जब NRC आया था, मेरी माए बहने गौर से सुनो, जब NRC आया था तो मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। 6 जनवरी को मेरी क़यादत में बहुत बड़ा जुलूस मालेगांव में निकला था खातून का, और वो जुलूस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस था औरतों का, जो NRC के खिलाफ निकला था। उसके बाद बीजेपी ने जब देखा कि पूरे हिंदुस्तान से NRC के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गुस्से में आ रही है आवाम, तो उन्होंने NRC को किनारे रख दिया, लेकिन NRC को खत्म नहीं किया। अब NRC का नाम बदलकर वो SIR ला रही है। SIR 11 रियासतों में अभी SIR शुरू है। बिहार में SIR मुकम्मल हुआ तो आपको मालूम है 64 लाख मुसलमानों की वोट काट दी गई है। बिहार में 64 लाख मुसलमानों की वोट काट दी गई। मतलब क्या बोला गया कि ये 64 लाख हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं, तो आप समझ लो कि ये हमारे महाराष्ट्र में भी आएगा। और वो हमसे क्या चाहते हैं? हमसे कौन सा कागज वो मांगते हैं? जो कागज हमारे पास नहीं। उनको पता है कि मुसलमानों के पास कौन से कागज नहीं है, और वो बड़ी कागज मांगते हैं हमको परेशान करने के लिए। आप ये समझ लो, SIR में आपसे मांगा जाएगा कि आप कहाँ पैदा हुए, ये पूछा जाएगा कि आपके वालिद कहाँ पैदा हुए, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके दादा कहाँ रहते थे, आपसे ये पूछा जाएगा कि 1987 से पहले तुम्हारा खानदान कहाँ था। सिर्फ दवाई नहीं पूछेंगे, सबूत मांगेंगे कि वो कहाँ रहता था, उनके पासपोर्ट है क्या, उनके कोई सरकारी अहम दस्तावेज है क्या। सबसे बड़ा दस्तावेज क्या है मालूम है? सबसे बड़ा कागज तुमको चाहिए जन्म दाखिला। और मैं जानती हूँ ये जो गली में भरी है, पूरी गली इस कोने से उस कोने तक भरी है। अगर मैं पूछूं कि जन्म दाखिला कितने लोगों के पास है, तो मेरे ख्याल से 10% लोगों के पास भी जन्म दाखिला नहीं हो। सिर्फ जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, इनके पास होगा। लेकिन एक बात सुन लो, जब हम कागज पूरा नहीं दे पाएंगे तो वो क्या करेंगे? आधार कार्ड कैंसिल कर देंगे। आधार कार्ड कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? हमारी शहरियत खत्म। फिर उसके बाद वो हमारा राशन कार्ड कैंसिल कर देंगे। अब आप समझ लो, अगर मैं अकेली SIR में फंसती हूँ, मैं अकेली अगर SIR में फंसूंगी तो उसके साथ राशन कार्ड जब कैंसिल होगा तो मेरे साथ मेरे शौहर का नाम है, मेरे बच्चों का नाम है, मेरे सास ससुर का नाम है। पूरा राशन कार्ड के कैंसिल होने से पूरा खानदान SIR में फंस जाएगा। और जब हम SIR में फंस जाएंगे तो वो हमको बोलेंगे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्याई है, ये पाकिस्तानी है। उन्होंने डिटेंशन कैंप बनाया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ उनकी सोच ऐसी है कि 10 करोड़ मुसलमानों को वहाँ डिटेंशन कैंप में रखने वाले 11,000 लोगों की भर्ती कर रहे हो। जिस तरह जेल में जेलर संभालने के लिए, कैदियों को संभालने के लिए पुलिस की भर्ती होती है, वैसे ही डिटेंशन कैंप में संभालने के लिए वो 11,000 लोगों की भर्ती कर रहे, और तुमको और हमको फंसाना चाहते। तो हमको हमारी बचाव के लिए सबसे बड़ी ढाल क्या है? कागजात। कागज हमारी ढाल है। इसलिए शेख आसिफ साहब और हमने मिलकर ये तय किया है कि आपकी दुआओं से और अल्लाह की नवाजिश अगर हुई तो हम इख्तियार में आए तो सबसे पहले जो 3400 जन्म दाखिले कैंसिल हुए हैं उसको हम लेके उनको बहाल करेंगे, उनके खिलाफ जो केस है वो निकाल देंगे। और भैया बहुत समझदार लोग बैठे, उनको मैं समझा देती हूँ कि कैसे निकाले। हम अभी भी मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने थाने के, बम्बई के थाने के, औरंगाबाद के और पूना के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हमने तहसीलदार की साइन का सैंपल से रिपोर्ट लेकर आई। जो तहसीलदार बोलता है ना कि मैंने साइन नहीं किया हूँ, ये बोगस 1000
44 दाखिले हैं, हमने उनकी साइन का रिपोर्ट ली है, वो साइन ओरिजिनल है। कारपोरेशन में इत्तला में आने के बाद सबसे पहले कारपोरेशन जो है वो तहसीलदार के खिलाफ केस करेगी। कारपोरेशन का करना जरूरी इसलिए है कि जन्म दाखिला बनता है कारपोरेशन से, और अगर जब उनके ऊपर केस होगा तो जो 3400 जन्म दाखिले कैंसिल हुए हैं उसको नया बनाकर इंशाअल्लाह हम लोग उनके नए जन्म दाखिले बनाएंगे, और उनके जन्म दाखिले बनने के बाद जो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और पूरे शहर के लोगों का नया जन्म दाखिला बनने का काम शुरू हो जाएगा। और आपसे हम वादा करते हैं कि आप SIR के आने से पहले हम यहाँ से चुन कर जाते हैं तो इलाके के हर कोने में टेबल लगाकर हर गली के कोने पे हम बैठेंगे, और SIR के आने से पहले हम आपके तमाम कागजात को पूरा कर देंगे, ताकि जब SIR आए तो कोई मुसीबत, कोई अफरा तफरी न फैले, कोई परेशान न हो। कोई जब SIR आएगा तो इतना हम आपके कागजात पूरे कर देंगे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं हो। देखो आज भी जन्म दाखिले के मामले में लोग परेशान हैं। आज भी 20 लोग जेल में हैं, 11 महीने से 20 लोग जेल में हैं। इसमें एक गजाला नाम की खातून भी है, एक 32 साल की मुसलमान औरत 11 महीने से जेल में है, अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़कर वो जेल में है। तो आपको उनके लिए भी दुआ करनी है और खुद के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमसे, हम चारों से अगर इतना बड़ा काम ले रहा है तो आपको हमारे साथ देना चाहिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, 15 जनवरी को जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन सिर्फ अपने इलाके की तरक्की के साथ साथ मालेगांव शहर की मुसलमान आबादी की तहफ्फुज़ के लिए हो रहा है, आपके तहफ्फुज़ के लिए हो रहा है। तो आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, 15 जनवरी को 2 मशीन होगा, एक पहली मशीन पे एक साइकिल का निशान, फिर उसके बाद रिक्शे का निशान, फिर दूसरी मशीन पर एक रिक्शे का निशान, उसके बाद रिक्शे के निशान से एक साइकिल निशान पर, और 3 रिक्शे निशान पे आपको वोट देना है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये लोग सिर्फ इलाके की तरक्की के साथ साथ शहर की मुस्लिम आबादी को बचाने के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। मैं उम्मीद करती हूँ और इस बात का वादा करती हूँ आपसे कि आपके बुनियादी मसाइल, रोड, गटर, नल, दवाखाने जो कुछ बचे हैं वो सब तो हम चारों मिलकर करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके शहर की और आपकी बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इंशाअल्लाह हम लोग जरूर निभाएंगे। जिस उम्मीद से आप हमारे साथ देंगे इंशाअल्लाह उससे बढ़कर करने की कोशिश करेंगे।